ਹੈਲੋ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਔਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿਜਯਮ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਵਿਦ ਫਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਦ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਲੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ MCQ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਬਾ ਦਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 5ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਗੋਇੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ, शायद परी, पता नहीं इस तरह का नाम कोई स्टूडेंट है, उसने जो जी एस्पिरेंट है, उसने एक डाउट रखा सी कि मैम क्वेश्चन के अंदर जो है कंपलैक्स नंबर टॉपिक का शायद कोई क्वेश्चन सी कि कंपलैक्स नंबर के अंदर आप अज्यूम किवें करते हैं। तो देखो उत्ते कमेंट सैक्शन के अंदर उसका जो आंसर नहीं दिता दसदा, इसलिए तुम WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करो तो उत्थे आपका डाउट जो जी पूछ लो, तुहाडा डाउट क्लीयर कर दिता जाएगा। तो वधदे हां जी, आप अपने अज दे सैशन वल करते हैं। अज दे सैशन की शुरुआत गल्लां हो गईयां बहुत। हाँ जी, लैट अस स्टार्ट अवर टूडेज सैशन। हाँ जी, आप की कर रहे सी जी, आप कर रहे सी जी सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ जी, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आप सीरीज बारे तो कंप्लीट कर लिया सी। ठीक है जी, सीरीज बारे आप पढ़ लिया सी। हुण आप सीक्वेंस बारे पढ़ रहे सी, कल सीक्वेंस बारे पढ़ रहे सी। तो मैं सीक्वेंस क्या सी, सीक्वेंस की हुंदा है, सीक्वेंस जो जी अपने को एक फंक्शन है जिसकी डोमेन की होंगी है जी नैचुरल नंबर होंगी है, पढ़िया सी। ठीक है, अलग अलग सीक्वेंस बारे तुहानूं मैं दस भी दिता सी थोड़ा बहुत। जी प्रोग्रेशंस ने जी भी आप AP GP HP की ये सीक्वेंस के अंडर ही आउंदियां ने, AGP सब की है जी अपने को सीक्वेंस के अंडर आउंदियां हैं। तो कल आप डिस्कस किया कन्वर्जेंस ते डाइवर्जेंट सीक्वेंस। दोबारा तो डेफिनेशन लिखवा देंगे ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए जी कन्वर्जेंट सीक्वेंस किहड़ा हुंदा है ते डाइवर्जेंट सीक्वेंस किहड़ा हुंदा है। हाँ जी, वेट, हाँ जी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ते डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की होंदा जी साडे कोल की है कि ये सीक्वेंस AN, कोई भी सीक्वेंस है AN इज सेट टू बी कन्वर्जेंट। इसनों आप कन्वर्जेंट कदों कहांगे, ये सीक्वेंस AN इज सेट टू बी कन्वर्जेंट कदों कहांगे, टू ए लिमिट, कोई भी लिमिट है, टू ए लिमिट L if for given epsilon, पुरानी डेफिनेशन तो याद होगी, if for given epsilon greater than 0, however small it may be, however small it may be, कितना भी छोटा हो सकता है, then there exists
then there exists a positive integer, मैं छोड़ दें लिख दें, then there exists a positive integer m depending on epsilon, ਜਿਹੜਾ कि डिपेंड होएगा एप्सिलॉन ते, एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट, किस तरह एग्जिस्ट करेगा जी, यह सिर्फ डेफिनेशन है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ an - l ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਿਲਨ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ an ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ l ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ an ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ l ਕਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਐਪਸਿਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, कि n ਜਿਹੜਾ ਜੀ m ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਗੇ ਜੀ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ a n ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਗਾ ਜੀ l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ an is said to be, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੋਗਾ, मतलब कि खत्म ही नहीं हो रहा, अनबाउंडेड है, डाइवर्जेंट टू इनफिनिटी इफ फॉर गिवन k ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज में, कितना भी बड़ा होवे, हाउएवर लार्ज इट मे बी, क्या कितना भी बड़ा हो सकता है, हाउएवर लार्ज इट मे बी, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर डिपेंडिंग अपॉन के, ਜਿਹੜਾ कि डिपेंडेंट होएगा जी k ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि an ਜਿਹੜਾ जी ऑलवेज ग्रेटर देन k होएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m ਦੇ ਲਈ, an ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ k ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, an ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇਊਗੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡਡ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆ ਸੈਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਉਂਡਡ ਸੈਟ ਤੇ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡਡ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਉਂਡਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की होता है बाउंडेड होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस की होता है जी अनबाउंडेड होता है। आप लोअर बाउंड अपर बाउंडेड या लोअर बाउंडेड किसी भी तरह का अपने को हो सकता है। ठीक है जी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस अपने को होता है जी बाउंडेड होता है। इस तो बाद अपने को थर्ड चीज़ आती है जी ओसीलेटरी सीक्वेंस, डेट्स इंपोर्टेंट ओसीलेटिंग सीक्वेंस। इस बारे आप गल की थी जीपे के अंदर जो आप केस बनाए सी, मैं तुहानू कहा सी कि ओसीलेट बारे तुहानू अगे दसांगे, तो तुसीं पिछली वीडियो देखी होगी तो तुहानू वो चीज़ां याद होणगियां, उसनूं इस नाल तुसीं कोरिलेट कर लियो। ओसीलेटिंग सीक्वेंस किहड़ा हुंदा, जिहड़ा नाइदर कन्वर्ज, जिहड़ा ना तां कन्वर्ज करे, नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज, ना तो कन्वर्ज करे ते ना ही डाइवर्ज करे, उसनू की कहते हैं जी ओसीलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। हाँ, की कहा जाता है जी, उसनू ओसीलेटिंग सीक्वेंस कहा जाता है। जिहड़ा ओसीलेटिंग सीक्वेंस हुंदा है जी आ फाइनाइट ते इनफाइनाइट दोनों तरह का ही हो सकता है। फाइनाइटली ओसीलेटिंग भी हो सकता है, फाइनाइटली ओसीलेटिंग जिहड़ा जी दोवें तरह का होंदा है। आ अपने को फाइनाइट ओसीलेटिंग भी होंदा है ते इनफाइनाइट भी होंदा है। तुहानू डेफिनेशन नाल कुछ नहीं समझ आएगा, मैं तुहानू जिहड़ा इहनू अगे एग्जांपल लेके समझानी कि कोई भी सीक्वेंस ओसीलेटिंग है तो फाइनाइटली भी ओसीलेट कर सकता है ते इनफाइनाइटली भी ओसीलेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अपने को कोई सीक्वेंस है, हाँ जी, मैं एक सीक्वेंस ले लिया an, आ मेरे को एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में मैं किसी कोई फंक्शन लिख सकती हूँ, an ਨੂੰ मैं फंक्शन लिख लिया फंक्शन ऑफ n। इत्थे an कुछ भी हो सकता है, तुहाडे कोल 1/n हो सकता है, n स्केयर हो सकता है, 2n हो सकता है या n हो सकता है, कोई भी अपने कोल n का फंक्शन अपने कोल जिहड़ा सीक्वेंस है an सीक्वेंस अपने कोल कोई भी फंक्शन है n का, तो अपने कोल देखो आपां की करना है, क्वेश्चन किवें सोल्व करना है। an अपने कोल पहला आपां लिख लिया फंक्शन ऑफ n, तो आपां इसकी लिमिट फाइंड करनी है। फाइंड की करना आपां फाइंड करनी है इसकी लिमिट, फाइंड लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी an।
इस दी लिमिट फाइंड करांगे ना तो अपने कोल जी तीन केस बनणगे। तीन केस बनणगे। पहला केस की बनेगा कि आ तुहानूं पता होगा लिमिट बारे सॉरी, पहली गल है कि या तो लिमिट इज द यूनिक एंड फाइनाइट होगी। लिमिट इज यूनिक एंड फाइनाइट की लिमिट तुहाडी जिहड़ी जी फाइनाइट आएगी या फिर यूनिक आएगी। दूजा लिमिट यूनिक तो हो सकती है सॉरी, लिमिट की है जी यूनिक होएगी बट इनफाइनाइट होएगी। ते दूजा केस की बनता है लिमिट यूनिक होएगी पर इनफाइनाइट होएगी। तीजा केस की बनता है जी लिमिट इज नॉट यूनिक। नॉट यूनिक की लिमिट इस दी यूनिक नहीं होगी। ऐसे नाल ही तुहानूं मैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट समझा दांगी। तीन केस बनते हैं जो भी तुहानूं कोई सीक्वेंस दे दिता जाए तो तुसीं उसदी लिमिट एंड अप्रोचेस टू इनफिनिटी पता कर लेनी है। तो उस कोल या तो तुहाडे कोल यूनिक ते फाइनाइट आएगी या जिहड़ी है जी वो यूनिक ते इनफाइनाइट आएगी या फिर वो यूनिक नहीं होएगी। इन्हां तिन्नां केसां चों जिहड़ा जी एक इहदे अंदर को केस जिहड़ा जी बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखो जी आपां हुण दसदे हां अपने कोल पहला जी लिमिट यूनिक है। पहला आप लिमिट यूनिक ले लेने। लिमिट इज यूनिक तो यूनिक के अंदर किन्ने केस सी? दो सी ना, दो केस सी। तो पहला केस डिस्कस करते हैं। फाइनाइट लिमिट है। लिमिट की है जी फाइनाइट है। फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस है मेरे को वो है जी 1/n। ठीक है, तो हम इतने लिमिट एंड अप्रोचेस टू इनफिनिटी करके देखो की आएगा। लिमिट एंड अप्रोचेस टू इनफिनिटी कितना 1/∞ कितना आ गया जी 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। तो आ की हो गया जी फाइनाइट लिमिट आ गई इसकी लिमिट क्या आ गई जी फाइनाइट आ गई। तो यूनिक भी आ गई कि 0 आ रही है। तो आ अपने को है जी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। केड़ा सीक्वेंस है जी? आ अपने को एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है जी, हाँ जी। दूजा केस की बनता सी कि यूनिक है तो पर लिमिट के इनफाइनाइट है। यूनिक है पर लिमिट की है जी इनफाइनाइट है। तो सॉरी इनफाइनाइटली फिर मैं एक सीक्वेंस ले लिया। मेरे को मान लो सीक्वेंस है n स्क्वायर मेरा सीक्वेंस है। an की जी मेरे को n स्क्वायर के बराबर है। हुण इत्थे लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी करो। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी करा तो n स्क्वायर कितना देगा जी? इनफिनिटी तक ही जाएगा, इनफिनिटी जाएगा। तो इस दी लिमिट तो यूनिक है, इनफिनिटी आ रही है पर है कि जी इनफाइनाइट है। तो आ केस की बन गया लिमिट इज यूनिक एंड इनफाइनाइट। आ हुंदा जी डाइवर्जेंट। इसनूं आपां की कहंदे आ जी डाइवर्जेंट कहंदे आ। डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन गया। आ मेरे को कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी। ठीक है जी, वो डाइवर्जेंट बन गया। तो आ वाला सीक्वेंस की सी जी मेरे को कन्वर्जेंट सीक्वेंस सी। थर्ड चीज दूसरी चीज अपने को किसी जी लिमिट इज नॉट यूनिक। किसी जी लिमिट इज नॉट यूनिक कि लिमिट जिहड़ा है जी अपने को यूनिक नहीं है। जे लिमिट यूनिक नहीं है तो की होएगा? जो लिमिट यूनिक नहीं होंगी तो इस अंदर भी सेम दो केस बनते हैं। एक बनता है फाइनाइट एंड नॉट यूनिक, दूजा बनता है इनफाइनाइट एंड नॉट यूनिक। ठीक है जी, इनफाइनाइट एंड नॉट यूनिक। तो हम ये दोनों भी आप देख लेने हैं इस तरह किस तरह होंगे है। देखो मैं एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल ना समझा। मैं एक सीक्वेंस ले लिया an आप ले लेने -1⁻n। ठीक है जी, -1⁻n आ गया। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी कितना। हुण देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी करांगे तो -1 दे n की देगा? या तो 1 देगा या -1 देगा। दोनों चीज़ों से एक देगा ना, क्योंकि इतने 1 है। तो या तो -1 देगा या +1 देगा। तो आ देखो यदि लिमिट यूनिक नहीं आई ना, पर फाइनाइट तो है। फाइनाइट तो है, दो नंबर तो है, इनफाइनाइट तो नहीं है। यूनिक नहीं है पर फाइनाइट है। कहने का मतलब आप किवें लिखांगे कि an जिहड़ा है जी 1 ते -1। 1 कदों है? इफ n इज ईवन। जे n ईवन है तो आ की है जी 1 है। तो जे n ओड है तो आ की है जी अपने को -1 है। यूनिक लिमिट नहीं आ रही, लिमिटा 2 आ रही है। तो आ किस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं जी ओसीलेटिंग कहते हैं। कि -1 to 1 जाता है, ओसीलेट कर कदे इधर कदे इधर कदे इधर कदे इधर। ओसीलेटिंग आई होंगे ना, आप पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम की ओसीलेटिंग गति होंगी है ओसीलेटरी। की होंगे कि आप दी वैल्यूज नू दो जगह ते ओसीलेट कर रहा है। तो आ हो गया जी नॉट यूनिक बट फाइनाइट। इसनू की कहते हैं ओसीलेटिंग। तो नॉट यूनिक तो इनफाइनाइट लई इहदे लई आप एग्जांपल ले लेने। हाँ सोचने एग्जांपल, हाँ जी an मैं ले लिया 2n ले लिया, -2n ले लिया, -2 दी ले लियो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। हुण देखो जो n लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी करावांगे तो आ फंक्शन वधदा ही वधदा जाएगा। आ फंक्शन की है जी वधदा ही वधदा जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी
-2 रेस्ट पावर n, 1 पढ़ांगे -2, 2 पढ़ांगे -4, फिर 4, 3 पढ़ांगे -8। इस तरह इसकी लिमिट वैल्यू अलग अलग आती जाएगी कि या तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी या इसकी वैल्यू क्या जी -इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी नहीं कह सकते, इसकी वैल्यू या तो आएगी 2 रेस्ट पावर n या आएगी -2 रेस्ट पावर n। आई चीज आएगी 2 रेस्ट पावर n कदों आएगी जो n इवन है, तो -2 रेस्ट पावर n कदों बनेगी जो n ओड है। तो तुहानू आ तां सरियाम ही दिख रहा है कि 2 रेस्ट पावर n अपने कोल की है जी, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है जिसकी लिमिट की है जी इनफाइनाइट जाती है, कितनी जाती है, इन्फिनिटी जाती है। तो आ इत्थों की पता चल गया तुहानू, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वधदी रहेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो आ भी अपने कोल की है जी यूनीक नहीं है, तो इनफाइनाइट लिमिट वाला सोल्यूशन है। तो ये दोनों की जी ओसीलेटिंग है, अपने कोल की है जी ओसीलेटिंग है, ओसीलेट कर रहे हैं, एक वैल्यू नहीं दे रही। हाँ जी, उम्मीद करते हैं तुहानू इन्नी गल समझ आ गई होगी। देखो आपां की पढ़िया, आपां देखिया सीक्वेंस। सीक्वेंस अपने कोल की है जी दो तरह के होंगे ने, एक मैं तुहानू नॉर्मल समझाने बाउंडेड ते अनबाउंडेड। उवें अपने कोल मोनोटोनिक अनमोनोटोनिक होंगे ने, अगे किस तरह करें हुण तक पढ़िया उहदा ग्राफ बना देने। बाउंडेड ते अनबाउंडेड दो तरह के होंगे ने। बाउंडेड किहड़े होंगे ने, या तो कन्वर्जेंट होंगे वो बाउंडेड होंगे ने, या फिर फाइनाइट ओसीलेटिंग नूं आपां की कहंदे आ बाउंडेड कहंदे आ। ठीक है जी, अनबाउंडेड किहड़े होंगे ने, डाइवर्जेंट सीक्वेंस अनबाउंडेड होंगे ने, ते इनफाइनाइट ओसीलेटिंग नूं भी की कहंदे आपां अनबाउंडेड कहते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, आ चीज़ तुहानू समझ आ गई होगी। एक ग्राफ तो अपने कोल डायग्राम आ बन सकता है जिसके नाल तुसी याद रख सकते हो। दूजा डायग्राम आप इवें बना सकते हैं कि सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर अपने कोल 3 तरह की लिमिट होंदियां ने, यूनीक ते फाइनाइट, यूनीक ते इनफाइनाइट, तीजा सी नॉट यूनीक। ठीक है जी, इनू आप कहते हैं कन्वर्जेंट कहते हैं। आ की हुंदा जी डाइवर्जेंट हुंदा है। इस दे अगे दो केस बनते हैं, वेट, हाँ जी, इस दे अपने को अगे जाके दो केस बनते हैं। आओ ओसीलेटिंग हुंदा है, ओसीलेटिंग ये दो केस बनते हैं, किहड़े किहड़े जी, फाइनाइट ते इनफाइनाइट ओसीलेट, फाइनाइट ओसीलेटिंग ते इनफाइनाइट ओसीलेटिंग दो केस बनते हैं। फाइनाइट वाला जिहड़ा जी वो अपने को किस दे अंदर जाता है, वो जाता है बाउंडेड दे अंदर, ते जिहड़ा अनफाइनाइट वाला है जी वो कित्थे जाता है, अनबाउंडेड दे अंदर। हाँ जी, इन्नी चीज़ तुहानू क्लीयर हो गई होगी सारिਆਂ ਨੂੰ, उम्मीद करती हाँ तुहानू क्लीयर हो गया होगा। दोबारा तो थोड़ा इनू सैट करके बना देंगे, थोड़ा जिहा हो गया सी अपने को खराब। हाँ जी, मैं की किया, आपां देखिया सीक्वेंस। ठीक है जी, सीक्वेंस के अंदर 3 तरह की लिमिट्स आपां देखिया। हाँ जी, पहली की सी यूनीक एंड फाइनाइट, दूजी की सी यूनीक एंड इनफाइनाइट, तीजी की सी जी नोट यूनीक। आ नोट कर लो टेबल तो ना, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो याद रह जाएगा। यूनीक ते फाइनाइट लिमिट वाला की होंदा जी, कन्वर्जेंट। आ की होंदा जी, डाइवर्जेंट। ते नोट यूनीक ते इनफाइनाइट वाला की होंदा है, दो तरह के अगे बनते हैं इहदे अंदर। हाँ जी, उवें नूं आपां किहड़ा कहंदे आ, ओसीलेटिंग कहंदे आ। ठीक है जी, इहदे अंदर फिर अगे दो केस बन जाने ने, फाइनाइट ओसीलेटिंग, इनफाइनाइट ओसीलेटिंग। फाइनाइट ओसीलेटिंग की होंदा जी, बाउंडेड, ते इनफाइनाइट ओसीलेटिंग की होंदा जी, अनबाउंडेड। ठीक है, आ अपने कोल किहड़ा होंदा जी, कन्वर्जेंट है ता बाउंडेड, ते डाइवर्जेंट है ता अनबाउंडेड। हाँ जी, सीक्वेंस बारे इन्नी गल समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप जरा साइन जरा जी जरूर तुसी भेज दिओ। हाँ जी, अगे चलते हैं जी। हुण अपने कोल सीक्वेंस की गल करिए तो अपने कोल अगे सीक्वेंस होंदे ने जी, इनक्रीजिंग ते डिक्रीजिंग बारे गल कर लेने, फिर तुहानूं मोनोटोनिक ते नॉन मोनोटोनिक बारे दसदी हां।
ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਨੈਵਰ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਨੈਵਰ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, इज नोन एज इंक्रीजिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने को सीक्वेंस है A1 जो है इनक्रीजिंग करना है, A1 तो वड्डा या इस तो बराबर होएगा A2, ग्रेड लेस देन इक्वल टू A3, लेस देन इक्वल टू A4 अप टू सो ऑन AN तक जाऊगा। कोई भी सीक्वेंस जो कदे डिक्रीज नहीं होंदा उन्होंने की कहते हैं जी इनक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, जिवें 1 3 4 5 6 6 7 8 9 11 13 13 इस तरह जो सीक्वेंस है आ देखो वधी वध रहा है, ताकि है जी अपने को एक इनक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूजा होंदा जी अपने को डिक्रीजिंग। हुण डिक्रीजिंग सीक्वेंस केड़ा होंदा जी? इस दे बिल्कुल ओपोजिट, ए सीक्वेंस विच नेवर इनक्रीज। एक सीक्वेंस जिहड़ा कदे भी इनक्रीज नहीं हुंदा, एक सीक्वेंस जिहड़ा कदे भी इनक्रीज नहीं हुंदा, उसनूं आपां की कहंदे हां? उसनूं कहंदे हां जी डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहंदे हां। उसनूं की कहा जाता है? उसनूं डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहंदे हां। इस दे अंदर की हुंदा जी A1 इज ग्रेटर देन हुंदा A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A3 ग्रेटर देन इक्वल टू A4 अप टू सो ऑन ऐसे चलता रहता है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लिया 7 6 6 5 3 2 इस तरह जो सीक्वेंस आता है वो अपने को की होंदा जी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होंदा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होंदा है। इसके बाद आंदे जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो वर्ड लग गया स्ट्रिक्टली वर्ड लग गया ना, तो इसका मतलब क्या है? ऑलवेज इंक्रीज। हुण फर्क देख लियो थोड़ा जिहा, ए सीक्वेंस विच ऑलवेज इंक्रीज, ए सीक्वेंस हुण दोनों च फर्क है, दोनों डेफिनेशन के अंदर फर्क है, ध्यान रख लियो। ए सीक्वेंस विच ऑलवेज इंक्रीज जरा हमेशा इंक्रीज करता, कहने का भाव की फर्क है दोनों डेफिनेशन के अंदर? आ कहता कदे डिक्रीज नहीं करना चाहिए, यानी कि घटना नहीं चाहिए, वधे पावे ना वधे वो गल नहीं है। ये अंदर बराबर लिमिट भी आ सकते हैं, बराबर नंबर भी आ सकते हैं, आ डिफरेंस है। पर स्ट्रिक्टली कहता तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, बराबर भी नहीं रहेगा। कहने का भाव 1 3 5 7 11 13 मतलब कि हर टाइम वध 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 ही रहा है। लिखिए तो A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3 इक्वल टू द साइन हटा दो, फिर स्ट्रिक्टली बन जाऊगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है जी, उसनूं आपां की कहांगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहांगे। उसके बाद अपने को आंदा जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हुण स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस केड़ा होएगा? सेम ए सीक्वेंस विच ऑलवेज डिक्रीज, जेड़ा हमेशा घटदा है, ए सीक्वेंस विच ऑलवेज डिक्रीज उसनूं की कहंदे हां? डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहंदे हां। जिवें 10 9 8 7 6 5 आ डिक्रीज है कि ਇਹਦੇ अंदर कोई भी नंबर इक्वल टू द साइन हटा देना है कि A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3 अप टू सो ऑन इस तरह जाता रहता है। वो क्या होंदा जी? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंदा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहंदे हां। तो इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ आ गया, तो हुण आपां अगे वधदे हां। आपां हुण करदे हां गल अपने इस दी मोनोटोनिक सीक्वेंस ते नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस दी। फिर आप नल सीक्वेंस कोशिश सीक्वेंस जिहड़े अपने कोल उन्हां बारे डिस्कस करांगे। कुछ इन्हां दी जिहड़े सब सीक्वेंस बारे भी पढ़ांगे, कुछ टॉपिक अज ते कुछ रहिंदा होया कल डिस्कस करांगे। हाँ जी, हुण गल करदे हां मोनोटोनिक सीक्वेंस। पहला तुहानूं डेफिनेशन लिखवा देनी है मोनोटोनिक सीक्वेंस की होंदा, फिर तुहानूं जनरल भाषा च समझा देनी है कि जी ए सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अपने कोल चलो पहला तुहानूं मैं जनरल लैंग्वेज अंदर समझा देनी है, फिर तुहानूं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे समझानी है। वेट देखो, जो सीक्वेंस ए सीक्वेंस विच इज either increasing और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसनूं की कहंदे हैं जी मोनोटोनिक सीक्वेंस कहंदे हैं।
ठीक है जी, उसनूं की कहा जाता मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ या तो वध रहा है या फिर घट रहा है, दोवां चों एक काम जिस सीक्वेंस के अंदर हो रहा है उसनूं आपां की कहांगे, उसनूं आपां मोनोटोनिक सीक्वेंस कहांगे। की कहांगे जी? मोनोटोनिक सीक्वेंस कहा जाएगा। हाँ जी, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस के अंदर अपने को दो तरह के ने, एक होंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बारे तो मैं दसता जी इंक्रीजिंग की डेफिनेशन से वही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दी है, पर डेफिनेशन लिखवा देनी है प्रॉपरली। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक increasing, is said to be monotonic increasing if f of n plus 1 मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होवे एफ एन तो कि अपनी पिछली टर्म तो वड्डा या उसके बराबर होवे फॉर ऑल एन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हाँ अदर वर्ड्स के अंदर आप कह सकते हाँ कि एफ ऑफ एन जोड़ा है जी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ एम तो फॉर ऑल एन जड़े जी ग्रेटर देन होन एम तो। ठीक है, आ डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप, या फिर आप आ वाली डेफिनेशन भी कह सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे लिए। ठीक है जी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे लिए। फॉर एग्जांपल तुहानू सीक्वेंस दस देनी है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की एग्जांपल लीए तो जे अपने कोई सीक्वेंस है ए एन किस के बराबर ले लिए आप, ले लिए एन क्यूब। आ क्या होएगा जी? आ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, आ वधे ही वधेगा वधे ही वधेगा वधे ही वधेगा। ठीक है जी, चाहे आप इत्थे ले लिए 2 रेज़्ड पावर n ले लिए, आ भी की है जी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है जी, तो ये सीक्वेंस अपने को ने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ने। जे तुहानू कह दे कि सीक्वेंस 1 के बराबर है, कमेंट सैक्शन के अंदर दसो आ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है या केड़ा है। ठीक है जी, आ केड़ा सीक्वेंस है कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर दस्यो ए एन वाला। ये बाद अपने को आंदा जी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। हुण मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की होंदा है? ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्यों? इफ उसके उल्ट कर दो इतने एफ एन प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए एफ एन फॉर ऑल एन, या फिर अदर वर्ड के अंदर कह दिए तो एफ एन लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए एफ एम फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो आ पॉइंट तुम नोट याद रख लियो। ठीक है जी, समझ तो आ गया हो कि हर एक अगली टर्म घटती होनी चाहिए है या फिर बराबर हो सकती है, बराबर भी हो सकती है या फिर घट सकती है। जे ये आगे स्ट्रिक्टली वर्ड लग गया तो इतों इक्वल हटा देना, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इस तरह का वर्ड आ गया फिर आप इसमें इतों हटा देंगे। वेट एक मिनट, आप स्लाइड ऐड कर लिए थे अंदर। हाँ जी, चलो हाँ जी, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ते मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तुहानू उम्मीद करनी समझ आ गया होगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस केड़ा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस केड़ा है। हुण तुहानू दसदे नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस केड़ा हुंदा है। ठीक है, तुहानू पूछ लिया जाए मोनोटोनिकली सीक्वेंस केड़ा, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस की है तो आप कहेंगे ए सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है जी, तो जेड़ा मोनोटोनिक, हाँ एक चीज़ होर नोट कर लियो, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, every monotonic increasing sequence increasing है तो नोट is not bounded above
एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग विच इज नॉट बाउंडेड अबव की है जी इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव नहीं होएगा, बाउंडेड बिलो होएगा, याद रखियो। इंक्रीजिंग के अंदर बाउंडेड अबव कदे भी नहीं होएगा, तो नॉट बाउंडेड अबव एंड डाइवर्स टू इन्फिनिटी। डाइवर्स कितने करेगा जी, डाइवर्स टू इन्फिनिटी करेगा। तो एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जेड़ा कि बाउंडेड बिलो नहीं है, एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ नॉट बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो मेरा समझाया है तुहानू पहला पिछले सैट के अंदर, तो तुहानू तो चंगी तरह समझ आ गया होगा। जो नहीं समझाया तो कुछ वीडियोस द्वारा देख लियो। विच इज़ नॉट बाउंडेड बिलो, जेड़ा बाउंडेड बिलो नहीं है, डाइवर्स करेगा कितने, माइनस इन्फिनिटी नू। ठीक है, जो बाउंडेड बिलो नहीं है तो माइनस नू करेगा, जो बाउंडेड अबव नहीं है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी नू करेगा। बाउंडेड बिलो अबव का मतलब किसी, बिलो का मतलब कि एदी स्टार्टिंग कोई ना कोई पॉइंट होएगा, अबव का मतलब कि एंड पॉइंट कोई ना कोई होएगा। ठीक है जी, हाँ जी। हुण गल करते हैं नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस। नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस की हुंदा है, हाँ जी, जेड़ा सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं हुंदा वो की हुंदा जी, नॉन मोनोटोनिक हुंदा है। कि विच सीक्वेंस विच इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जरा ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। हुण तुसीं कहोगे सेम वैल्यूज दे रहे, नहीं, ਇਹਦਾ मतलब आ नहीं है। कहने का मतलब की है कि कदे कितने इनक्रीज कर जाता, कितने डिक्रीज कर जाता, कदे वैल्यू बढ़ जाती है, कदे घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल -2 2 -2 इस तरह पहला वध गई फिर घट गई फिर वध गई, इस तरह जो सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, उसनों की कहते हैं नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। हाँ, कि जिसकी वैल्यू कदे घट रही है कदे वध रही है, वो अपने को है जी नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ठीक है जी, ओके जी, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस हुंदा है। हुण आपां मोनोटोनिक के हिसाब नाल अपना बना लेने सीक्वेंस है जी दो तरह के, केड़े केड़े, मोनोटोनिक ते नॉन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक के अंदर अपने को अगे दो तरह के बन जाते हैं, केड़े, एक तो बनेगा कन्वर्जेंट, दूजा बनेगा डाइवर्जेंट। नॉन मोनोटोनिक के अंदर अपने को की बनेगा जी, अपने को नॉन मोनोटोनिक के अंदर कन्वर्जेंट भी बनेगा और डाइवर्जेंट तो होएगा ही नहीं नॉन मोनोटोनिक। याद रखियो, नॉन मोनोटोनिक जो है जी डाइवर्जेंट तो होएगा ही नहीं। ठीक है, तो आ क्या होगा, कन्वर्जेंट होएगा या फिर क्या होगा जी ओसिलेटिंग होएगा, ओसिलेटिंग। तो आ चीज़ याद रख लियो, सीक्वेंस के अंदर मोनोटोनिक सीक्वेंस की होंदा जी कन्वर्जेंट होंदा या फिर डाइवर्जेंट होंदा। नॉन मोनोटोनिक की होंदा जी या तो कन्वर्जेंट होएगा या फिर ओसिलेटिंग होएगा, डाइवर्जेंट कभी भी नहीं होएगा, डाइवर्जेंट कभी भी नहीं होएगा। हुण जदों मैं मोनोटोनिक की गल कर रही थी तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की गल की सी ते बाउंडेड की भी गल की सी। तो जो अपने को मोनोटोनिक सीक्वेंस हुंदा है ना, ये बारे तुहानूं दस दिंदी हां। मोनोटोनिक सीक्वेंस जिहड़ा जी अपने को या तो बाउंडेड होएगा या अनबाउंडेड होएगा, या तो बाउंडेड होएगा या क्या होएगा जी अनबाउंडेड होएगा। इन्नी गल समझ आई। जे वो बाउंडेड है तो की होएगा जी, वो अपने को दो केस बननगे बाउंडेड के अंदर, किस तरह के बननगे, या तो इनक्रीजिंग होएगा या फिर डिक्रीजिंग होएगा। ठीक है जी, या तो वो सीक्वेंस की होएगा जी इनक्रीजिंग होएगा या डिक्रीजिंग होएगा। अनबाउंडेड के अंदर भी इसी तरह दो केस बनन जाएंगे, अनबाउंडेड के अंदर भी क्या होएगा, या तो इंक्रीज करेगा या फिर जो कि जी डिक्रीज करेगा। मोनोटोनिक सीक्वेंस की गल करते हैं। ठीक है, तो जे अपने को इनक्रीजिंग है, जे बाउंडेड है, ध्यान रखियो ना, बाउंडेड ते इनक्रीजिंग है ना, तो कितने कन्वर्ज करेगा, इट कन्वर्ज, क्योंकि बाउंडेड है तो कन्वर्ज करेगा, तो इट कन्वर्ज टू लीस्ट अपर बाउंड, LUB, लीस्ट अपर बाउंड समझे ना, आप कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड मतलब कि सुप्रीमम, सुप्रीमम मेरे लिए दूसरा वर्ड है, लीस्ट अपर बाउंड ਨੂੰ कन्वर्ज करेगा। लीस्ट अपर बाउंड मतलब कि एज दी हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट एंड वाली लास्ट वैल्यू ते कन्वर्ज करेगा। तो जे डिक्रीजिंग है तो कितने करेगा, इट कन्वर्ज टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आ चीज समझ आ गई कि सब तो छोटी वैल्यू ते वो जड़ा जी डाइवर्ज कन्वर्ज करेगा। जे डिक्रीजिंग है तो मान लो उसकी सब तो छोटी वैल्यू -1 आ रही है, उसकी लोअर बाउंड जड़ा जी -1 है, तो वो -1 ਨੂੰ जड़ा जी करेगा।
देखो मैं एक सीक्वेंस लिखा -1 -2 आ -1 कन्वर्ज कर रहे सॉरी -2 नहीं 1 -1 1 0 1 इस तरह का कोई सीक्वेंस ले लेना चलो आ सीक्वेंस है तो आ कन्वर्ज करेगा -1 क्यों क्योंकि इसका लोअर बाउंड की है इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड की है -1 आ रहा -1 तो छोटी इसकी वैल्यू नहीं जा रही ਹੁਣ -1 तो इसकी वैल्यू छोटी तो नहीं जा रही पर जे मैं इन्हू कहां बाउंडेड बिलो की गल करा ध्यान नाल सुनो जे मैं बाउंडेड बिलो की गल करा तो -2 नाल भी बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड बिलो का मतलब की है कि इस नंबर तो सारी वैल्यू इसकी वड्डी होनी चाहिए ने कि बाउंडेड बिलो उस नु कहांगे कि इस पॉइंट ते बाउंडेड बिलो कदों कहांगे जे सीक्वेंस दी सारी वैल्यूज इस तो वड्डी होण तो जे मैं तो एवें भी कहदा -2 तो भी इसकी सारी वैल्यूज वड्डियां ने -3 तो भी इसकी सारी वैल्यूज वड्डियां ने तो इन्हां नु क्यों नहीं कन्वर्ज कर रहा याद रखियो डिक्रीजिंग कन्वर्ज करेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सब तो बड़ा लोअर बाउंड केड़ा बन रहा है सब तो बड़ा इस तो छोटे भी होर बन जाएंगे पर सब तो बड़ा लोअर बाउंड -1 बन रहा है ताकि ये जी आ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नु कन्वर्ज करेगा सिमिलरली जे इंक्रीजिंग है तो लीस्ट अपर बाउंड नु कन्वर्ज करेगा ठीक है जी समझ आ गया होगा इन्ना पॉइंट तुहानू हाँ जी इसी तरह जे अनबाउंडेड है इंक्रीजिंग है तो इनफिनिटी नु करेगा डिक्रीजिंग है तो -इनफिनिटी नु करेगा तो सिंपल जी गल है मोनोटोनिक दे अंदर इसी तरह नॉन मोनोटोनिक की गल करिए नॉन मोनोटोनिक भी अपने को दो तरह नाल हुंदे ने बाउंडेड ते अनबाउंडेड ठीक है जी बाउंडेड की करते हैं बाउंडेड की करेंगे या तो कन्वर्ज करेंगे मैं तुहानू लिखाया सी कि नॉन मोनोटोनिक या तो कन्वर्जेंट होएगा या ओसिलेट होएगा तो बाउंडेड की करेंगे कन्वर्ज करेंगे या फिर ओसिलेट करेंगे किथे फाइनाइट थे ओसिलेटिंग फाइनाइट तुहानू मैं समझा चुकी हूँ या ओसिलेट फाइनाइट करेंगे अनबाउंडेड की करेंगे जी ओसिलेटिंग इनफाइनाइट इनफिनिटी ते कि जे ओसिलेट करेंगे तो अनबाउंडेड होंगे जे बाउंडेड है तो कन्वर्ज करेंगे या फिर जी फाइनाइटली वो है ओसिलेट करेंगे तो उम्मीद करती हैं इत्थों तक तुहानू समझ आ गया होगा हुण अपना सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर की रह गया जी थोड़ा जिहा टॉपिक रह गया आपां कल दे लेक्चर अंदर डिस्कस करांगे ते कल जेहड़े जी MCQ डिस्कस करांगे कुछ आपां MCQ AP GP HP वाले तो कर चुके हैं पहला भी ते कुछ MCQ रह गए जिवें मीन ऑफ डिफरेंस दे सम नाल करने वाले जेहड़े MCQ हुंदे आ सम ऑफ डिफरेंस नाल जेहड़े आपां AP GP सॉल्व करदे आ ਉਹ वाले MCQ प्रीवियस ईयर ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ MCQ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਥਿਊਰਮਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ डिस्कस करने वाली वो भी आप कल के सैक्शन के अंदर डिस्कस करांगे एक कोशिश सीक्वेंस के बारे आप अज पढ़ लेने कि अपने को कोशिश सीक्वेंस की होंदा है सॉरी कोशिश सीक्वेंस की डेफिनेशन अज लिखवा देने बाकी तुहानू कल इसके बारे डिटेल होर जे तुहानू जरूरत हुई तो होर समझा दिता जाएगा हाँ जी कोशिश सीक्वेंस की होंदा है ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कोशिश सीक्वेंस इफ लिखो डेफिनेशन लिख लो ए सीक्वेंस is said to be Cauchy sequence if a sequence ले लेना है if for given epsilon for any epsilon greater than 0 then there exists a positive integer then there exists a लाइन तो तुसी रट्टी लो m such that किस तरह का होएगा such that f of n माइनस f of m करांगे तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा वेयर उत्थे अपने को की है n जेड़ा है ग्रेटर देन और इक्वल टू m है आ डेफिनेशन याद रख लियो तुसी कोशी सीक्वेंस दे लई ठीक है की कह रहा है कोई भी सीक्वेंस नु कोसी सीक्वेंस कदों कहांगे कि गिवन के एप्सिलॉन कितना भी छोटा अपने को एक एप्सिलॉन है कोई भी एप्सिलॉन है हाउएवर स्मॉल इट मे बी ठीक है तो उत्थे जेड़ा है जी ओ सॉरी इत्थे मैं f ले आना सी सीक्वेंस f लिया तो इत्थे f करना है ऊपर ए ले लिया सी गलती नाल ताकि है जी उन्हां दे fn माइनस fm करांगे तो उन्हां दा डिफरेंस एप्सिलॉन तो छोटा आएगा एग्जांपल दस देनी है तुहानू मैं कोसी सीक्वेंस दी कदी एग्जांपल दे देनी है 1/n ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ -1 रेज़ टू पावर n भी एक कोसी सीक्वेंस है ठीक है जी ये अपने को कुछ कोसी सीक्वेंस दी ओ सॉरी नहीं -1/n कोसी सीक्वेंस नहीं है मैं गलत लिखता है मैं कहना सी नहीं है
हाँ जी 1/n ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਬਟ -1 ਰੇਜ਼ਡ ਪਾਵਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ f of n ਮਾਈਨਸ f of m ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ n ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ m ਤੋਂ। ठीक है, पर ये अंदर आ चीज़ अपने को नहीं आएगी, आ डेफिनेशन इतने सैटिस्फाई नहीं करेगी तो आ वाला सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस नहीं इतने करेगी, ताकि जो अपने को कोसी सीक्वेंस हैगा है। हाँ जी, उम्मीद करते हैं तुम्हें अज का काम समझ आ गया होगा। अज दे लिए इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड मेक योर प्रिपरेशन वेल। ठीक है जी, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रैपरेशन। प्लीज़ वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਅਸ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। वंस अगेन थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ।